I'm from science background and I don't know how to write good answers for UPSC. If you also think so, then this is the right place to be. Hello guys, my name is Avinash. I welcome you to my YouTube channel and today we are going to discuss about how we can write good answers for UPSC. Specifically, if you are not someone from humanities and you are someone from science background. So let's get started off with the video and discuss more about it. So guys, if we talk about answer writing, then we all do know answer writing skills are very important because at the end prelim is just entry or ticket to write mains, and our final list will be made according to our performance in mains and interview. So for both of them it's important that mains or answer writing skills should be very good. If you are someone not from humanities background, you may have lot of mind blocks that this is the reason why I'm not able to write good answer, this is the reason why I'm not able to write good answer. We had discussed everything, every negativity specifically related to the answer writing skills of a science background person. So if you had not watched that video, then I request you to just go back and watch that video first to understand that there is nothing like that. All those things are just your mind blocks, nothing else. So the link of the video is displayed on your screen. Just go there, watch that video and then come to this video. So right now we are able to understand that writing skills should have to be very good. So how can we enhance our answer writing skills? For this, फर्स्टली वी हैव टू यूज आर एनालिटिक स्किल्स. एनालिटिक स्किल्स कैसे? जैसे कोई भी क्वेश्चन हमें आ रहा है एग्जामिनेशन में, सो डेफिनेटली वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमने अभी तक देखा ही नहीं होगा, हमेशा वो न्यू पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन होगा. तो जो आंसर हमें लिखने को मिल रहा है, जो क्वेश्चन मिल रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है. जब समझ में आ जाता है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके साथ ही हमें एनालिटिकल स्किल्स के थ्रू वो आंसर को राइट करना है. सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंट पेपर्स में आ सकता है. सेम क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 1 में आएगा, सेम क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है, सेम क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 3 में भी आ सकता है. अब आपको डिफरेंट एंगल से लिखना है. अगर वही सेम क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 1 में आया तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से लिखोगे. अगर जीएस पेपर 2 में आया तो आप पॉलिटिकल के हिसाब से लिखोगे. जीएस पेपर 3 में आया तो आप उस हिसाब से लिखोगे. साइंस का है तो साइंस के हिसाब से लिखोगे. तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पेपर दैट यू आर अटेम्प्टिंग. फर्स्ट थिंग तो ये माइंड में रखना है. सेकेंड थिंग है एनालिटिक स्किल. दूसरे किस तरीके से हम यूज करेंगे, वही तरीका जो हमने द हिंदू की न्यूज़पेपर सीरीज में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एडिटोरियल एनालिसिस करके हम एडिटोरियल एनालिसिस के पूरे नोट्स मेकअप करेंगे और उसी से ही हम आंसर राइटिंग करेंगे. वो आई होप यू हैड वॉच्ड दैट सीरीज. इफ यू हैडंट, then I request you to just go there and watch that video or that playlist so that you can understand ki how we can actually develop analytical skills through reading newspapers, because it's very crucial. Until we don't know how to use analytical skills, तो हम आंसर को analytically present कैसे करेंगे, और वही important है. तो अगर आपने वो नहीं देखा है, that is also displayed on your screen. Just go there, watch that playlist and then come to this video. सो देन कम स्ट्रक्चर, बिकॉज स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आपको कितनी इंफॉर्मेशन है, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर में वो आंसर नहीं लिखा है तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो भी हम लिखें उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखेंगे. इंट्रोडक्शन होना चाहिए, देन बॉडी पार्ट होगा और एंड में ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होगा. पेसिमिस्टिक कंक्लूजन नहीं लिखना है, ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए. सो देन कम्स अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स, कि जो हमें डिटेल्स मिली है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से समझना है. अब देखो ये सब चीजें कहाँ आपको हेल्प करेंगे, जब हम आंसर्स लिखेंगे. अगर आपके अंदर एनालिटिकल स्किल्स है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करके उसके हिसाब से उसकी जो डिमांड है उसके हिसाब से आंसर राइटिंग कर सकते हो. अगर आपको पता है किस स्ट्रक्चर में लिखना है, तो अगर आपने वो द हिंदू की जो सीरीज में मैंने आपको जो मेथड बताया है, आपने उस वे में अपने रोज आंसर राइटिंग की है, तो आपको ये दोनों तीनों चीजों में ही प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स उससे अपने आप डेवलप हो जाएंगे. स्ट्रक्चर आपको उसमें ही पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर कैसे मेकअप करना है, तो आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सब कुछ कर पाओगे. एंड देन अंडरस्टैंडिंग डिटेलिंग, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करना है, उसकी कैसे डिटेल्स हमें बतानी है, तो वो हम सब कुछ समझ पाएंगे. देखो कभी भी प्रैक्टिस से कुछ भी किया जा सकता है, और किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस छूट जाती है तो कुछ भी नहीं हो सकता. सपोज करो आप बहुत अच्छी कार ड्राइव करते हो एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू ड्राइव कार सिंस लॉन्ग बैक. 6-7 साल हो गए आपने कार ड्राइव ही नहीं की. आप कार ड्राइव करना भूलोगे नहीं, मगर कहीं ना कहीं एक झिझक होगी. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस छूट गई है. और
आप कार ड्राइव भी कर लोगे, पर वैसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप एकदम से नहीं होगा जो पहले था, क्योंकि आपने प्रैक्टिस छोड़ दी। जब आप फिर से अपना काम शुरू करोगे, मतलब ड्राइविंग शुरू करोगे, तो इवेंचुअली आप बहुत जल्दी वही कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे। मगर वो कॉन्फिडेंस दोबारा से आया कैसे? प्रैक्टिस से। ऐसा तो था नहीं कि जितने साल आपने गाड़ी नहीं चलाई आप गाड़ी चलाना भूल गए थे, आपको पता है कार कैसे चलाते हैं, पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। और हर चीज का सिर्फ एक ही चीज, मतलब हर चीज को तोड़ने के लिए या हर चीज को समझना, हर चीज को प्रेजेंट करना, उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर मैं जो आपको बता रही हूँ ये मैं कॉन्फिडेंस से बताने की बजाय बहुत ज्यादा डर डर के बताऊंगी, तो आप मेरी बात सुनोगे ही नहीं। आपको ये लगेगा इन्हें खुद तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये हमें क्या कॉन्फिडेंस देंगी। तो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, और वो कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आपको आंसर राइटिंग की भी हर रोज डेली प्रैक्टिस करनी है। इनिशियल फेज में डेफिनेटली आप द हिंदू के न्यूज़पेपर से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपको उस सीरीज में बताया गया है। जब आप वो सीरीज में वो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस का सेशन है उसे कंटिन्यू करोगे, आप 1 से 2 महीने में अपने आप में ड्रास्टिक चेंजेस देखोगे। उसके बाद 2 महीने में आपका कुछ सिलेबस भी कवर हो चुका होगा, फिर आप PYQs अटेम्प्ट कर सकते हो आंसर राइटिंग के लिए। तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस के बिना आपके आंसर राइटिंग स्किल, चाहे आप कितनी वीडियोस देख लो, चाहे आप कितनी बुक्स पढ़ लो, कभी भी बढ़ेंगे नहीं, कभी भी अच्छे नहीं होंगे आंसर राइटिंग स्किल, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। आजकल इंसान सोचता है हर कोई मेरे लिए सब कुछ कर दे, मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं सिर्फ टाइम लगा के वीडियोस देख लूंगा। उससे कुछ नहीं होगा। पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, खुद से मेहनत करके होगी। एक्सपीरियंस गेन करना है, तो गलतियां करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और गलतियां कब होंगी? जब हम प्रैक्टिस सेशंस में जाएंगे, तभी उन गलतियों को पता चलेगा और हम उन पर वर्कआउट करके उन्हें ठीक करेंगे। सो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस इज की। यूज इन्फोग्राफिक्स वेन एवर पॉसिबल। जैसे ज्योग्राफी का है, मैप जरूर ड्रॉ करो, चाहे कितना गंदा ड्रॉ करो, पर करना तो पड़ेगा। उन्हें भी पता है कि वी आर नॉट आर्टिस्ट, जरूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छे से पता हो कि कैसे मैप ड्रॉ करते हैं। जैसे आप कर सकते हो, डोंट बी परफेक्शनलिस्ट, बिकॉज परफेक्शन कुछ नहीं होती। ह्यूमन भी खुद परफेक्शन में नहीं है, तो वो क्या परफेक्शन क्रिएट करेगा। सो डोंट गो फॉर दैट। हमेशा कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। जैसा मैप बनता है बनाओ, जैसा डायग्राम बनता है बनाओ, पर एटलीस्ट ड्रॉ। वो आपका अटेम्प्ट देख रहे हैं, राइट? दे आर नॉट चेकिंग हाउ creative you are while making maps, while making diagrams. So this is not requirement of your job कि आपको डायग्राम्स बनाने हैं, आपको मैप्स बनाने। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जॉब की? कि आपको पता हो कि वहां पे क्या क्या है। आपको पता हो कि अगर मैं ये अपनी कमांड दूंगा तो उसके कारण ये रिपरकशंस इसके हो सकते हैं, और अगर हुए तो मैं उन्हें कैसे हैंडल करूंगा। सो यू आर गोइंग टू बी लीडर, सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। तो अपने आंसर में इन्फोग्राफिक्स जरूर यूज करो। यही चीजें आपको माइंड में रखनी है, और अगर आप माइंड में रखोगे, अगर ये सारे के सारे पॉइंटर्स आपके माइंड में क्लियर है और आप बहुत अच्छे से इन पे काम कर रहे हो, तो 101% आपके आंसर राइटिंग स्किल्स जरूर एनहांस होंगे। तो आपको अपने एनालिटिकल स्किल्स पे काम करना है, आपको स्ट्रक्चर पे काम करना है कि आंसर प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो, अपनी जो क्वेश्चन है उसकी डिटेलिंग्स में जाना है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, द वे आई हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर इन द हिंदू सीरीज। एंड फिफ्थ इज यूज इन्फोग्राफिक एज मच एज यू कैन। These are the 5 pointers you have to remember and you have to work on if you want to write good answers and if you want to enhance your answer writing skills. So that was it for this particular video, guys. But I want to know, like, in which among these 5 pointers, which are the pointers on which you are going to start off working from right now. If you had not subscribed to my YouTube channel yet, then I request you to subscribe it right now and hit the bell icon so that all notification of new videos get delivered to you. Along with that, guys, I always conduct a masterclass in which I let people know how to proceed with UPSC journey, how to make realistic time plans, how to achieve the targets that you had set, and all other things. So if you are interested to know more about it, do register yourself by clicking on the link given in description below, and I will love to handhold you throughout this UPSC journey. So that was it for this particular video. I will see you all in the next video with next topic. Till then, bye bye, guys.